सीतारमण आ चुकी हैं और यहां पर अब वो अपने संबोधन में बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल की इस अहम बैठक जो कि जैसलमेर में कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है, क्या अहम फैसले लिए गए हैं। जैसा हमने आपको लगातार आज जानकारी दी है, पॉपकॉर्न रिलेटेड कुछ फैसले हैं, फैसले नहीं उसे सफाई कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि जो आप मल्टीप्लेक्स में या कहीं और भी खुला बंद किस तरह का पॉपकॉर्न ले रहे हैं उस पर रेट्स को क्या होने चाहिए, किस तरह के पॉपकॉर्न पर, उस पर क्लैरिटी दी है। इसके अलावा वाउचर्स पर, प्रीपेड कार्ड्स पर कितना लगेगा नहीं लगेगा उस पर क्लैरिटी दी है। वैसे यह है कि उस पर नहीं लगना है। सेकेंड हैंड ईवी पे 18% जीएसटी की बात आई है, तब जबकि कोई इंडिविजुअल उसे नहीं खरीद रहा है, एक इंस्टीट्यूशन उसे खरीद रहा है। इंडिविजुअल के लिए वो सही है। अब शायद वित्त मंत्री बोलना शुरू ही कर रही हैं, तो चलिए सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। नमस्कार, मीडिया के यहाँ उपस्थित साथियों को मैं स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मैं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव श्री अजय सेठ, सीबीआईसी अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल और मंच पर उपस्थित सीबीआईसी के आदरणीय सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों का भी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कुछ देर पहले ही संपन्न हुई। माननीय वित्त मंत्री जी इस बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को अभी हमारे साथ साझा करेंगी, जिसके बाद हम मीडिया से प्रश्न लेंगे। ब्रीफिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रख लें। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे आज की बैठक के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दें। Thank you, ma'am. Thank you very much. I'll give broad indications of the decisions taken so that my opening statement doesn't become too long, and post that on specific items I can always elaborate. See, I'll first go by the rate changes on goods, particularly elaborate. See, I'll first go by the rate changes on goods, particularly specifically also where the rates have come down or exemptions have been happening. So, a reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. As you know, fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision that we bring the price down, the tax down. Next is gene therapy, which is now very critical for life-saving measures taken for very life-threatening diseases, have been totally exempt. LR-SAM system is very important in defense, surface-to-air missile. So in that, we've decided to extend the IGST exemption which are provided to systems, subsystems, equipment, parts, subparts, tools, test equipment, software meant for assembly and manufacture of LR-SAM. All of them have always been exempted, but now the exemption is further extended. It was, I think, in 2019 the exemption was provided. Now it is the exemption continues, so we've extended it. Then there is a reduction in the rate of compensation cess to 0.1% on supplies to merchant exporters at par with the GST rate on such supplies.
So this was a particularly important request which had come from traders and exporters. In order to help exporters, this relief is being provided, otherwise their working capital was getting blocked because they pay it and then claim back. So this is with a clear intent of helping exporters. Next is to exempt IGST imports of all equipment and consumable samples by inspection teams of the International Atomic Energy Agency, the IAEA, subject to specific conditions. Then this is another important step which you can link with the fortified rice that I spoke about, also to help the weaker sections, to extend the concessional 5% GST on input of food preparations that are supplied for food preparations intended for free distribution to economically weaker sections under a government program subject to existing conditions. So this is also an extension of the 5% rate which prevails for food items which go into food preparation that is used for free distribution for the weaker sections. So these are the reduction or exemption or extension of rates. There are such for services, I'm not elaborating it for this minute. There are clarifications also being issued on ACC blocks containing more than 50% fly ash. If it has more than 50% fly ash content, it will fall under a particular HS code of 6815 and it will attract 12% GST. This is very important, the next one, which is also a clarification that black pepper, whether fresh green black pepper or dried black pepper and raisins, that is kishmish, when supplied by an agriculturist, is not liable to GST. So when a merchant buys it and sells it, is a different story. But if the agriculturist himself, call him a farmer, call him a plantation worker, if he himself is giving it or a small person is giving it, then it is not liable to GST. Then this will be important to amend the definition of pre-packaged and labeled items to cover all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 liters, which are pre-packed as defined by the Legal Metrology Act, or a label affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Act. This is also very important because it's an amendment, so that that clarification has, for the lack of it, has created a lot of confusion. So we are defining what actually is prepackaged and packaged. Before I get into the detail of other, there's one other important thing. Payment aggregators who do less than 2,000 rupees payment are eligible for exemption. But let us understand, and I provide this clarification now, that this exemption does not cover payment gateways and other fintech services which do not involve settlement of funds. So payment aggregators alone, I'm talking about, who do less than 2,000 rupees will have that exemption provided. Another important decision, there are several which will be covered in detail in your press note, which all of you all will receive. I clarify that no GST is payable on the penal charges
levied and collected by banks and NBFCs from borrowers for non-compliance with loan terms. This will be very important for small businesses, so I repeat it. The Council has desired that we issue a clarification that no GST is payable on the penal charges levied and collected by banks and NBFCs from borrowers for non-compliance with loan terms. Before I get into the specific details of others, broad items of interest for all of you all, I'd like to list them out. There are about 8 of them. We have our Minister of State, Pankaj Chaudhary ji, who chaired the compensation cess-related group of ministers. They have given a request to the Council, which the Council has accepted today, that they need more time to get into the details. So that has been given an extension. Nothing specifically mentioned about the term, but extension has been provided. Then there was this request placed on the agenda whether ATF, air traffic fuel, should be brought into the GST, because periodically we've had airlines telling us, civil aviation requesting us, that ATF should be brought into the GST. It's not been agreed on. States did not feel comfortable. They didn't want the ATF because they saw it as part of the crude petroleum diesel basket, and therefore they said that alone cannot be taken out, and therefore that continues to remain where it is today. There was also a suggestion just ATF could be put to a GOM so that they can think whether it is worthy of consideration to be brought into the GST, but they did not want anything done about ATF. So that is the second. Third, the GOM on health insurance. In fact, I may suggest that I must inform that the chairman of that GOM, Deputy Chief Minister of Bihar, was for almost just before lunch he left. He was there in the morning session, and since he had to leave a bit early, he decided that the Council take that issue up first. And he did say that after good work, it's felt that it requires more time, and therefore health insurance related GOM work also requires more time, so they have gone to take more time. On 1 or 2 specific grounds which I would like to put before you as to why it had to have more time, insurance and therefore the insurance regulators' input is awaited. IRDAI, the Insurance Regulatory and Development Authority's inputs have not come, so the GOM felt that it needed a bit more time. The rate rationalization, GOM, also needs more time. Again, there, I would like to inform through you, the media, that speculation about what the rate rationalization is doing is seen everywhere. And there are reports which are also carried on saying it may be like this, it may be like that, even in the media, because that's in the air and therefore you'll also report on it. मगर उसका रिपोर्ट फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ही विनम्रता से आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्पेकुलेशन में नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, स्पेकुलेशन आधारित रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट के ऊपर स्पेकुलेशन करना, उसका असर पूरे सोसाइटी के ऊपर लगता है और सभी वर्गों के ऊपर मन में ये चिंता हो जाती है कि क्या होने वाले हैं, क्या बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा। ये स्पेकुलेशन में प्लीज मत भाग लेना, क्योंकि कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ है। I honestly want media to please check up every time with the concerned people, क्या इसमें फाइनल हो गया है, निर्णय हुआ है कि नहीं, ये चेक करके छपाइए ना। छपाने में लोगों के मन में
बहुत सारे चिंता आ जाता है कि होने वाले हैं, नहीं होने वाले, इंक्रीज होने वाले. So my request is the committees have not finalized, the GOMs have not finalized, and they have legitimate reasons which the which the GST Council has appreciated. हाँ, उनको और समय चाहिए. इसीलिए इस बीच में स्पेकुलेशन में मत जाना. Speculation on these very sensitive matters is not really good for any one of us. So rate rationalization has also not finalized its report. They need a bit more time. एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूं. छोटे कंपनियों रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि आपके बिजनेस साइज क्या है, कितने साल से हैं, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले हैं, कॉम्पनसेशन और व्हाट इज इट योर स्मॉल कंपनी, ये सब प्रश्न आता है. इसीलिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है, एंड दैट कॉन्सेप्ट नोट टुडे रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द GST Council. This will bring in new registration process, which of course will require an amendment in the law. Act में छोटा सा amendment का जरूरत भी पड़ेगा, मगर वो concept note को विस्तार से पढ़ने के बाद, उसको GST Council approve करने के बाद, हम जो amendment करना है वो करेंगे. मकसद एक ही है कि इस छोटे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आसानी से होना चाहिए, और उनको, जिन कंपनियों को आईटीसी भी छोटा है, उन कंपनीज का इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए. सो सिंप्लीफिकेशन को मन में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट नोट टेबल किया गया है, एंड द काउंसिल हैज इन प्रिंसिपल गिवन इट्स अप्रूवल. द नेक्स्ट वन, अगेन मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन इसके ऊपर भी हुआ, मैं इसको आपके सामने रखना चाह रही हूं. ये डिसीजन डेफर हुआ है, मगर डिसीजन मैं बोल रही हूं, विषय बोल रही हूं. क्विक कॉमर्स के द्वारा या डिलीवरी प्लेटफॉर्म के द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा फूड डिलीवरी जब होता है, उसमें फूड का रेट में टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग टैक्स करें, डिलीवरी के लिए अलग कितना टैक्स करना है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुआ. पिछले एक सप्ताह से मैं देख रही हूं न्यूज़पेपर्स में कंपनियों का नाम लेकर के, इनके ऊपर 18 होगा, बड़े क्विक कॉमर्स में इतना होगा, क्या खाने की चीज में 5% जब लग रही है, घर में पहुंचने में उसका 18% टैक्स होगा क्या? अगेन मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूं जीएसटी काउंसिल के बिहाफ में, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये डिफर हुआ है, जिससे जीओएम इसके ऊपर विस्तार से और एक बार चेक करेगी. क्या क्विक कॉमर्स के द्वारा घर में खाना मंगवाना, और जब खाने के चीज के ऊपर 5% है, डिलीवरी के लिए ज्यादा होना है कि नहीं होना है, क्या है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुआ है और इसका निर्णय नहीं हुआ. और जब तक निर्णय जीएसटी काउंसिल तक नहीं आता, उसके ऊपर प्लीज स्पेकुलेट नहीं करना. अगला एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रख रही हूं. इस बिल्डिंग बनाने के समय फ्लोर स्पेस इंडेक्स, बिल्डिंग बनाने के समय एफएसआई जो बोलते हैं, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में होना है या फॉरवर्ड चार्ज में होना है, इसके ऊपर भी एक विषय एजेंडा में आया. जीएसटी लगता है उसके ऊपर, मगर क्या रिवर्स में होना है, फॉरवर्ड में होना है, ये म्युनिसिपैलिटी तक, उनके रेवेन्यू तक प्रभावित होने वाले एक निर्णय है. बिकॉज एफएसआई लार्जली इज रेज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी लेवल अथॉरिटीज, एंड इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में लगना या फॉरवर्ड चार्ज में लगना लगता है जीएसटी,
मगर इस कंफ्यूजन में बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहा था, ये एजेंडा में भी आया, इसमें भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। क्योंकि निर्णय नहीं हुआ, मगर ज्यादातर लोग और हम भी मानते हैं कि ये म्युनिसिपैलिटी लेवल का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन वाली चीज है। इसमें लैंड से बनाया, मतलब बिना लैंड बिल्डिंग तो नहीं बन पाते। सो लैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट्स सब्जेक्ट। सो वी फेल्ट इसके ऊपर कोई चर्चा ऐसे होना नहीं चाहिए। दे विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो डिसीजन नहीं हुआ, मगर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच केम फॉर recognition is that it will affect the municipality's revenue. It will also be on a terrain of or a subject of the state, which is land. So उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ। फिटमेंट कमेटी ने इसमें हाँ बरवाई कि we should look at it, we should take it up and all that. कल ऑफिसर्स मीटिंग जहां हुई, हमारी रेवेन्यू सेक्रेटरी who's holding additional charge, Secretary EA Ajay Seth ji clearly said we should think about it because it has an implication on the states, it has an implication on municipalities, and that came for discussion, and therefore it also went through the process of deferring it. It will go to the committee or we'll think about it. The eighth point which I want to draw your attention is training partners, skill training partners of the National Skill Development Council. उनको जो अप्रूव्ड पार्टनर्स है, नॉट एवरीबडी, जो अप्रूव्ड पार्टनर्स है, उनको जीएसटी एग्जेम्प्ट करने के लिए निर्णय हुआ है, मगर नोटिफिकेशन आएगा बाद में. So these are 8 main things on which I want to draw your attention. But there are 3 things on which, even as the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स. मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है. कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है. पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए. पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती. सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ. एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है. सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की. व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है. इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है. सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए.
दूसरा एक विषय मैं पेमेंट एग्रीगेटर्स का भी इसी में जोड़ा, मगर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड पेमेंट एग्रीगेटर्स। दूसरा एक विषय है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन करती हूं। ईवी व्हीकल्स, उसके ऊपर भी सुबह से चल रही है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनल नहीं हो। ईवी व्हीकल्स के ऊपर ये एब्सोल्युटली क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि नया व्हीकल्स ईवी खरीदने में 5% है। Am I right? 5%। पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है। We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. मगर used EV खरीदने के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें। The same thing as 5%. No GST. Sorry. Used EV. An individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. And I like to highlight this point to you. हमारी तरफ से केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज 1/3 मेंबर ऑफ द GST, हमारी तरफ से एजेंडा में सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड EV व्हीकल्स को 12 से 5 तक ले आने के लिए वी हैड सजेस्टेड. बट व्हेन द डिस्कशंस हैपेंड, it is on that margin, the value, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. So EV vehicle का हमारे recommendation तो 5 को ले आओ, उसको भी जैसे EV का नया vehicle का रेट है. मगर आफ्टर विस्तार डिस्कशन द मार्जिनल वैल्यू के ऊपर ही ये 18% डाला जा रहा है, जैसे कि हर यूज्ड व्हीकल का है. सो मोर कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चन. It is not a blind application of 18%. It is more thoughtfully done. Our recommendation was for 5%, but post that, the discussions have resulted in this. Open for questions. With your permission, we will start the question and answer session. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना मैडम नमस्ते. मैं फर्स्ट इंडिया से ऋतुराज शर्मा, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा. मैडम सामने प्लीज़. मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल से हूँ. मैडम ये पूछना चाहूँगा कि जो राजस्थान के तरह तरह के हस्तशिल्प उत्पाद हैं, राजस्थान के पर्यटन उद्योग है, राजस्थान में जो टेक्सटाइल का भीलवाड़ा का बड़ा उद्योग है, इन तमाम उद्योगों को लेकर कुछ GST में कमी या रियायत देने का कुछ है यहाँ पर है. राजस्थान में जो टेक्सटाइल का भीलवाड़ा का बड़ा उद्योग है, इन तमाम उद्योगों को लेकर कुछ GST में कमी या रियायत देने का कुछ है. यहाँ पास में ही क्षेत्र में मसाला उद्योग भी बहुत फेमस है, तो उसको लेकर कुछ आपके पास आए होंगे तरह तरह के ज्ञापन, तो कुछ उसमें रियायत देने का है, GST में कमी या रियायत या और कुछ, या इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति? आज की GST काउंसिल में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ है. अगर आया है तो भी
फिटमेंट कमेटी और बाकी कमेटी के द्वारा वो प्रोसेस करने के बाद ही काउंसिल के एजेंडा में आएगा, मगर आज के एजेंडा में नहीं था। जब मैं बुलाऊंगी आप, है ना, आंचल आप पूछेंगे। हाँ, ma'am, Andhra's minister outside said that he made a proposal about a special 1% additional rate over the 28% rate. So what was that proposal? Because he said you agreed for it to be referred to GOM. So if you could elaborate. Let me recall, in 2018, Kerala, after a disaster, natural disaster, sought the permission of the council and then levied 1% on B2C on all items, and that lasted for 2 years. It was a request made by Kerala in 2018. It was sent to a GOM. The GOM considered it, and post that the council was placed the agenda. The council then approved it in 2019. So, whilst the sentiment in the House was, yes, Andhra had a major flooding and they required to be like Kerala given the facility, and as that was being discussed, Telangana said even they have faced a crisis. Himachal, quoting 2 years or 1 year ago, the flooding and cloudburst that they suffered from, said even we suffered. Then West Bengal said even they have faced floods. So, and there was one more state which also said even we have suffered. So I took the sense of the House, because I did say that when the decision of Kerala happened, पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। अभी सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, कुछ अन्य मुद्दों पे बात हो रही, लेकिन उन्होंने कई सारी बड़ी बातें यहाँ पर ऐलान में कही है, जहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को 2-3 हिस्सों में रखा है। जैसे जहाँ पर रेट्स में चेंज किए गए, तो जो फोर्टिफाइड राइस है, यानी कि जिनमें कैल्शियम मिलाया गया है, जिनको फोर्टिफिकेशन किया गया है, विटामिन डाला गया है जिनके अंदर, वहाँ 18% से जीएसटी को घटा के 5% किया गया है। जीन थेरेपी जो कि इलाज के काम आती है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज मिसाइल को बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजी है, टूल हैं, सॉफ्टवेयर है, उसके काम आने वाली तमाम चीज़ें वहाँ पर फुल एग्जेम्पशन था, उसे कंटिन्यू करने का उन्होंने कहा है। इसके अलावा कंपनसेशन से खास तौर पे जो एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उस पर उन्होंने सफाई दी है। और कई तरह के जो इंपोर्ट सैंपल्स होते हैं उस पर आईजीएसटी एग्जेम्प्ट करने की बात कही है। इसके अलावा सर्विसेज पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं, जैसे कि अच्छा, एक और चीज़ है जो एसीसी ब्लॉक है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे फ्लाई ऐश से बनी हुई ईंट, वहाँ पर भी जीएसटी को, और उन्होंने एक शर्त रखी कि जो ईंट है उसमें 50% से ज़्यादा फ्लाई ऐश होना चाहिए, वहाँ जीएसटी घटाकर 12% किया गया है। काली मिर्च, किशमिश, इनको अगर कोई किसान बेच रहा है तो उसको जीएसटी से मुक्त किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ सफाइयां दी हैं। पेमेंट एग्रीगेटर की बात की है कि 2000 से कम पेमेंट एग्रीगेटर कौन हुए, पेटीएम जैसी कंपनियां हुई, अन्य कंपनियां हुई, तो उन पर 2000 से कम के पेमेंट पर वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होंगे, अगर 2000 से कम का पेमेंट उनके थ्रू हो रहा है। कुछ चीज़ों पर उन्होंने सफाई दी है कि क्या डिस्कस किया, क्या नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया में बहुत सारे स्पेकुलेशंस आए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उससे बचना चाहिए। पीनल चार्जेस जो बैंक लेते हैं, अगर किसी बोरोअर ने अपनी ईएमआई जंप कर दी, उस पर जो पेनल्टी लगती है, उस पेनल्टी के ऊपर कोई जीएसटी जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाए। सो नो जीएसटी पेएबल ऑन पीनल चार्जेस लेविड बाय द बैंक्स और एनबीएफसीज ऑन लोन बोरोअर, ये साफ किया उन्होंने। इसके अलावा एटीएफ की चर्चा निकली कि उसको लाने के लिए चर्चा हुई थी, लेकिन कोई कंसेंसस नहीं बनी जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया। रेट रेशनलाइजेशन पर भी उन्होंने कहा कि कोई इस पे फैसला नहीं हुआ, और हिदायत भी दी कि आप प्लीज़ इस पर अभी से कोई स्पेकुलेशन मत कीजिए। छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कत होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को चेंज करने की बात कही, हालांकि उसके लिए एक अमेंडमेंट आएगा, चेंजेस आएंगे। और इसके अलावा ई कॉमर्स
क्विक फूड डिलीवरी, अभी उस पर भी उन्होंने कहा है कोई निर्णय नहीं हुआ है। एफएसआई जो बिल्डरों का मुद्दा था वो भी आया चर्चा में, लेकिन फिलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा लगता है, लेकिन रिवर्स लगेगा कि फॉरवर्ड चार्ज लेना है, यानी कि खरीदार देगा या बेचने वाला देगा, इस पर निर्णय लेना था, नहीं हुआ है। स्किल ट्रेनिंग की बात की। पॉपकॉर्न उन्होंने जिक्र किया, पॉपकॉर्न का जिक्र किया कि वहां पर 2 कैटेगरी होती है, मीठे और नमकीन की, इसलिए इस हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। और बात करेंगे ईवी पे, क्लैरिफिकेशन दिया कि क्यों सेकंड हैंड सेल ईवी। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए। तो लक्ष्मण, बहुत सारी बातें वित्त मंत्री ने यहां पर की, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी बातों को 2 हिस्से में रखा। एक तो जहां पर रेट में कोई चेंजेस आए, जैसे आपने फ्लाई ऐश का बताया था, वहां पर मोहर लगती हुई नजर आई। फोर्टिफाइड राइस का उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो कर रहे हैं। फिर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर से लेकर टूल्स, हार्डवेयर वगैरह, सब उनको एग्जेम्प्ट करने का या एग्जेम्पशन को जारी रखने की बात कही है। और एसीसी ब्लॉक की बात हो गई, ब्लैक पेपर रेजिन्स की बात की। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने कहा है कि पेमेंट एग्रीगेटर, 2000 से कम का पेमेंट आप अगर ये एग्रीगेटर के जरिए कर रहे हैं, गेटवे के लिए उन्होंने साफ किया कि वो गेटवे की बात नहीं कर रही हैं, पेमेंट एग्रीगेटर पे अगर 2000 से कम का पेमेंट हो रहा है तो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशंस होंगे। तो ये सारी चीजों को आप भी एक बार सम अप कर दें अगर मैं कहीं उसमें कोई चीज छोड़ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल में जो बैठक में फैसला लिया गया उसको 3 हिस्से में बांट के देख सकते हैं। पहला हिस्सा कि फैसला क्या हुआ, कहाँ कहाँ जीएसटी की दरें घटाने का फैसला लिया गया या बढ़ाने का फैसला लिया गया। दूसरा कि जो फैसला टल गया, और तीसरा कि बहुत सारी सफाई यहाँ पर आई है। तो ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं। जहाँ पे जीएसटी की दरों पर फैसला लिया गया है उसमें बताऊं कि पेमेंट एग्रीगेटर सही आपने पकड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 रुपये से कम का पेमेंट होता है पेमेंट एग्रीगेटर के जरिए, तो फिर यहाँ पे जीएसटी वहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे पेमेंट गेटवे या फिर फिनटेक कंपनियां हैं, उनको इससे राहत दी गई है, मतलब वो इसमें शामिल नहीं है। पेमेंट गेटवे के जरिए या फिनटेक कंपनियों के जरिए लेन देन होता है तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर 2000 से कम का करते हैं लेन देन तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे निकलकर सामने आई वो ये है कि ईवी को लेकर के, ईवी को लेकर जो कंफ्यूजन था वो बिल्कुल यहाँ पे साफ दूर होता हुआ दिख रहा है। जो आपने पिछले बुलेटिन में कहा भी था और हम लोगों ने साफ किया था अपने दर्शकों को कि अगर आपस में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का लेन देन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो वहाँ पे जीएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई जीएसटी नहीं लगता, वहाँ नहीं रहेगा। और कंपनी के लिहाज से लेते हैं आप, कंपनी को लेता है जहाँ पे डिप्रिसिएशन लागू होता है, सेकेंड हैंड ईवी लेता है, तो वहाँ पे मार्जिन वैल्यू पे, मतलब मान लिया 10 लाख की गाड़ी थी उसको 8 लाख पे बेच रहे हैं या फिर 6 लाख पे बेच रहे हैं, तो जो मार्जिन है उस मार्जिन वैल्यू पे आपको जीएसटी लगेगा, वो 18% का जीएसटी लगेगा। ये यहाँ पर साफ हुआ है। एक और 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने नोट किया था, एक तो आपको था कि ब्लैक पेपर को लेकर, किशमिश को लेकर के अगर किसान इसकी सप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये एक बड़ी बात निकल कर आई है। एसीसी जो फ्लाई ऐश से बनने वाले ईंट है उस पे जीएसटी 12% लगेगा, ये यहाँ पे साफ कर दिया गया है। तो ये कुछ बातें थी जिस पे जीएसटी में कटौती की गई है। लेकिन जो 1-2 चीजें मुझे लगा जो जिसपे काफी हद तक सफाई आने की बात हुई है वो है कि एटीएफ पर जीएसटी घटाने की बात, जीएसटी के दायरे में एटीएफ को लाने की बात थी कि कब से एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाए, कितना लगाया जाए, इस पर डिटेल चर्चा हुई, लेकिन राज्य इससे सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि सिर्फ एटीएफ क्यों, ये तो पूरा बास्केट होता है, क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो सबको फिर लाना होगा, तो उसको छोड़ दिया जाए। तो उसको फिलहाल जीओएम के पास भेज दिया गया है राज्यों की चिंताओं को देखते हुए। दूसरा जो सबसे ज्यादा संभावना थी वो थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी की दरें हटाने को लेकर के, जीएसटी की दरें घटाने को लेकर के। तो इस पे जो रेगुलेटर है आईआरडीए, उनसे कुछ सुझाव मांगे गए थे, उनके कमेंट आने थे, वो नहीं आया, इस वजह से उस पर फैसला अभी नहीं हो पाया। रेट रेशनलाइजेशन कमेटी जो काफी एक विवादों में उठा था कि 35% जीएसटी लगेगा टोबैको प्रोडक्ट पे या दूसरे प्रोडक्ट पे, जीएसटी की दरों में कमी बढ़ोतरी की जाएगी, तो उसके लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और वित्त मंत्री ने यहाँ साफ किया कि जो खबरें चली थी वो दरअसल बहुत ही फैसला नहीं हुआ था, प्री मैच्योर था, तो उस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है।
तो लेकिन एक तीसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग टैक्स के शो भी करते हैं, कई छोटे मोटे ट्रेडर के फोन भी आते रहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के। किन्हीं को लेट हो गया तो फिर वहां पे दिक्कत हो रही है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में दिक्कत होती है, तो उस पे एक सरकार पूर्ण विचार कर रही है और उसको नए सिरे से सारे नियम को काफी ज्यादा सरल करेगी। एक और चीज जो अभी मुझे याद आया, काफी महत्वपूर्ण है कि कई बार बैंक के कंप्लायंस को फॉलो नहीं करने की वजह से बैंक पेनल्टी लगा देते हैं, एनबीएफसी पेनल्टी लगाते हैं। कई बार आपने होम लोन नहीं चुकाया, उस पर पेनल्टी लग गई। छोटे मोटे कारोबारी कोई बैंक के नियम को उल्लंघन कर दिया तो उसे पेनल्टी लग गई। उस पेनल्टी पे जो जीएसटी लगता था वो जीएसटी नहीं लगेगा। मुझे लगता है ये आम लोगों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत है, उस पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चीजों को धीरे सिंप्लीफाई करने की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है जीएसटी में। और पॉपकॉर्न को लेकर वित्त मंत्री ने सफाई जारी कर दी कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई जीएसटी बढ़ोतरी नहीं हुई, जो हम लोगों ने पिछले बुलेटिन में अपने दर्शकों के सामने सबसे पहले सफाई पूर्वक रखा था, उसी को वित्त मंत्री ने कहा भी है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी पे रेट कम ज्यादा करने की बजाय जीएसटी अब ज्यादा से ज्यादा सरल होने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरफ जीएसटी काउंसिल की ये बैठक जो जैसलमेर में अभी भी खत्म हुई है, वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा, मतलब पॉपकॉर्न को लेकर वित्त मंत्री ने एक प्यारी सी चुटकी भी ली कि आप लोग प्लीज़ पॉपकॉर्न को पॉपकॉर्न रहने दें, क्योंकि कई जगह उसके लिए थोड़ी अन्य तरह की खबरें भी चली थी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से साफ किया कि एक कैटेगरी है जहां नमकीन है और एक कैटेगरी है जो आपने भी बताया था कि कैरमलाइज जो पॉपकॉर्न होते हैं जिन पे शुगर की कोटिंग होती है, उसको अलग माना। और वही बात यहाँ वित्त मंत्री भी समझा रही थी और कह रही थी कि आप कोई अलग से स्पेकुलेशन मत कीजिए। एक चीज़ लक्ष्मण जी मैं समझना चाहूँगा, वो कंपनसेशन सेस का एक जगह उन्होंने जिक्र किया एक्सपोर्टर और ट्रेडर के लिए, वो पॉइंट अगर आप हमें थोड़ा बता पाएं। देखिए, वहां पे जो कंपनसेशन से मिलता है उस कंपनसेशन सेस पे जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था, जीएसटी लगता है। तो उस जीएसटी को लेके कई सारा कंफ्यूजन यहाँ पे था, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश जीएसटी काउंसिल की बैठक में किया गया है। और वहां पे कंपनसेशन सेस जो है उस पर खास तौर से उसमें जो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट होते हैं उसके जीएसटी के दरों में कटौती करने का फैसला लिया गया है। ये खास तौर से एक्सपोर्टर के लिए और खास तौर से छोटे एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे क्या होता था कि उनका एक कैपिटल ब्लॉक हो जाता था, कैपिटल रुक जाता था। और एक्सपोर्टर बहुत कई बार कम मार्जिन पे काम करते हैं या फिर उनके पेमेंट कई बार रुके हुए रहते हैं, तो वहां पे जो कंपनसेशन सेस मिलता था उस पे जीएसटी के दरों में कटौती करने का फैसला लिया गया है। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्टर के लिए और जो गुड्स के एक्सपोर्टर हैं उनको एक बड़ी राहत दी गई है ऐसे समय में जब एक्सपोर्ट पूरे देश से थोड़ा से गिरते क्रम में चल रहा है, एक्सपोर्ट में गिरावट आ रही है, एक्सपोर्टर तरह तरह की राहत की मांग कर रहे थे। वहां पे जीएसटी काउंसिल का यह फैसला एक्सपोर्टर को एक थोड़ी सी मदद करने की तरफ जरूर कह सकते हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से आपने एलोबरेट किया और समझाया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या फैसले हुए और वित्त मंत्री ने उस पर क्या कहा। 3 कैटेगरीज में आपने बांट के समझा और मैं आपके साथ ही ये बात सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि जैसे वित्त मंत्री साहिबा ने कहा कि कई बार बहुत सारे स्पेकुलेशन मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ पर हम ये कोशिश करते हैं कि आपको स्पेकुलेशन की जगह जो सही पिक्चर है वो दिखाई जाए, जिम्मेदारी के साथ दिखाई जाए। लक्ष्मण जी ने पिछले बुलेटिन्स में भी तमाम चीज़ों पे जो कहीं थोड़े कन्फ्यूजन्स थे या स्पेकुलेटिव पॉइंट थे वो करेक्ट किया और इनफैक्ट वही सारी बातें यहाँ पर वित्त मंत्री भी दोहराती हुई नजर आई। उन्होंने भी वही पॉइंट्स हाईलाइट किए कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो कोशिश यही कि आपके पास खबरें पहुंचाई जाए, सबसे पहले पहुंचाई जाएं, लेकिन एक जिम्मेदारी और एक दायित्व के साथ सही चीज़ें पहुंचाई जाएं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का इस पूरी खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।